Namaste everyone and welcome. Today I'll be taking you through another set on roots and networks from CAT 22 slot 2. Let's look at our FATE framework and decide whether this set should have been picked or not. So this is the set. There are 5 questions. Every day a widget supplier supplies widgets from the warehouse to 4 locations. So typically a route map is given. You can go from warehouse to A. The distance is 5 km. A to B, the distance is 6 km. I'll just zoom this part a bit so that it's easier for you to follow along. एंड देन द नंबर ऑफ विडजेट्स, अगर आप सेट को पढ़ेंगे तो विल फाइंड नंबर ऑफ विडजेट्स जो डिमांड है या डिलीवरी है वो दो अलग अलग है हर जगह पे. फॉर एग्जांपल ए माइट हैव अ डिमांड ऑफ 50 विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%, 70 विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%. द मोमेंट प्रोबेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर फेमिलियर विद. So I'll quickly say that familiarity में definitely this set will rate very low. I am not familiar कि widgets deliver भी करने हैं और उसमें corresponding probability भी दी हुई है. In terms of ambiguity of clues, तो एक बार clues समझने की what does this mean? So they've explained. For example, there is a 40% chance that the demand in Ahmednagar will be 50 units. 40% chance है कि 50 units हैं. The distances in both directions along the road are equal. Every day the supplier gets information about the demand values of 4 locations. It's not pretty straight because familiarity नहीं है. It's not pretty straightforward to just run through with it कि कहाँ से क्या होगा. So I'll put a question mark. It's not very difficult. It's not very easy as well. Time consumption I have no idea because ऐसा सेट देखा ही नहीं है तो मुझे नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चन. एक बार क्विकली देखिए. द लास्ट लोकेशन, इफ द लास्ट लोकेशन मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सिनेरियोज, सारे क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इन्फो है. सो एक्स्ट्रा इन्फो मेरे फेवर में नहीं है. टाइम कंजम्पशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है तो आई विल नॉट पिक दिस सेट. इतना करने के बाद मैं इमीडिएटली बोल दूंगा भाई ये सेट तो पिक नहीं करना है. थर्ड सेट, फोर्थ सेट, बाकी सेट्स नहीं बन पाए तो अलग बात है. विल कम बैक टू दिस, बट इन द फर्स्ट गो फेट फ्रेमवर्क डजंट अलाउ दिस सेट टू बी पिक्ड. नाउ लेट्स स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस पर्टिकुलर सेट रेफर टू. सो एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं. Every day a widget supplier supplies widgets from the warehouse W to 4 locations. Ahmednagar, so ABCD इनके नाम है. Daily demand is uncertain and independent of each other. Daily demand uncertain है और independent है. यहाँ से probability जिनका पढ़ा हुआ है, understand that अगर independent है तो हम possibilities multiply करेंगे. Total probability निकालने के लिए you will multiply the possibilities or probabilities to get the final answer. Demands and corresponding probability values in parentheses are given against each location, and this example we have understood. So B पे डिमांड 40 हो इसका चांस 30% है और डिमांड 60 हो इसका चांस 70% है. दैट इज द आइडिया. सो डिमांड दो ही अलग अलग पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि 40 से 60 का रेंज है. सो समटाइम्स दिस माइट बी द कंफ्यूजन कि सब डिमांड 41 भी हो सकती है. नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी 30 और 70 मिला के 100 हो गई. मतलब या तो डिमांड 40 होगी या 60 होगी. 40 demand with a probability of 30%, 60 demand with a probability of 70%. So this is how it will be. The lines in figure connecting the locations and warehouse represent two-way roads. तो आप A से B भी जा सकते हो, B से A भी जा सकते हो. Distance is 6 kilometer. That is the same. ठीक है. Every day the supplier gets information. Every day the supplier gets information about the demand values of the 4 locations and creates the travel routes that starts from the warehouse. तो हमेशा स्टार्ट आपको वेयरहाउस से ही करना है. एंड एंड्स एट अ लोकेशन आफ्टर विजिटिंग ऑल द लोकेशंस एग्जैक्टली वंस. सारी लोकेशंस को एग्जैक्टली एक बार विजिट कर लिया और वहां पे आप स्टॉप कर जाओगे. विच मींस जस्ट टू हाईलाइट की पाथ कैसा हो सकता है. सपोज डब्ल्यू ने ए से चालू करा. ए से चालू करने के बाद लेट सपोज वो सी पे आना चाहता है तो इट कैन कम टू वेयरहाउस अगेन एंड गो टू सी, देन मे बी इट कैन गो टू बी, देन गो टू द वेयरहाउस एंड देन कम टू डी. तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी डी पे. तो देन इट डज नॉट नीड टू रिटर्न बैक टू वेयरहाउस. वेयरहाउस पे वापस जाने की कंडीशन नहीं है. सो व्हाइल मेकिंग द रूट प्लान द सप्लायर गोज टू द लोकेशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिमांड. जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा उस पे जाएंगे. तो इस पे भी एक छोटा सा थॉट दे देते हैं कि यहाँ डिमांड सबसे ज्यादा डायरेक्टली किसी की दिख रही है क्या. तो विल से नहीं 50 या 70 अभी नहीं पता. इसका 40-60 ऑर्डर नहीं पता. मतलब सपोज यहाँ 50 हो गया और यहाँ 40 हो गया तो आप पहले ए पे जाओगे फिर बी पे जाओगे, समथिंग लाइक दिस. पर अगर यहाँ 50 हुआ और यहाँ 60 हो गया तो पहले आप बी पे जाओगे फिर ए पे जाओगे. तो डिपेंड करेगा. अगर इफ दिस नंबर इज लार्जर, डिमांड ज्यादा है तो आप बी पे पहले जाओगे देन कम बैक टू ए. पर इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली एट सी का मिनिमम 2 चॉइसेस है 70 या 100. इसका मिनिमम 70 ही, बाकी सबसे बी और सी से तो डेफिनेटली ग्रेटर है, ए के साथ टाई है.
तो अगर ए का 50 हुआ तो आप सी से स्टार्ट कर लोगे, अगर ए का 70 हुआ तो टाई हो जाएगा। टाई में क्या होगा, अगर डिमांड सेम आती है। ऑल्सो व्हाट हैपेंस व्हेन if there is a tie for the choice of the next location, the supplier will go to the location closest to the current location. तो वेयरहाउस से अगर स्टार्ट करने में टाई हो रहा है तो दोनों में 70-70 डिमांड है, तो डिस्टेंस 5 का ही है ए के लिए, तो फिर वो डब्ल्यू ए के बाद स्टार्ट करेगा फिर सी पे आएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ऑल्सो while creating the route, the supplier can either follow the direct path जा सकते हैं, और can take the path via warehouse। वेयरहाउस पे आना कितनी बार भी अलाउड है। If both paths are available, the supplier will choose the path with minimum distance। आप डिस्टेंस मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। तो अब in terms of understanding there shouldn't be any ambiguity। Let's jump to question straight away। First question is, if the last location visited is Ahmednagar, last visited location A है, तो मैं यहाँ ऑर्डरिंग कर दूं 1 2 3 4, लास्ट विजिटेड लोकेशन तो आपकी A है। अगर लास्ट विजिटेड लोकेशन A है, मतलब अंडरस्टैंड, कैन आई डायरेक्टली से कि 70 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 70 होता तो लार्जेस्ट डिमांड सी के साथ टाई हो सकता था अगर ये 70 होता, और नहीं, अभी ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये 70 होगा, हमें नहीं पता 70 होगा या नहीं होगा। इतना जरूर बोल सकते हैं कि अगर ये 70 हो जाता तो 40-60 और 30-50 से बड़ा हो जाता, तो फिर आप भले ही सी से स्टार्ट करते लेकिन आप ए पे इसके बाद कभी ना कभी आते। ए लास्ट नहीं हो पाता, तो ये तो श्योर है कि यहां पर आप 50 डिमांड लेके चलोगे। बाय द वे दे आर आस्किंग सिंपली द डिस्टेंस, तो ए के लिए अगर ये 50 है तो नाउ वी आर श्योर दैट यू विल स्टार्ट विद सी, एंड वी डोंट नो कि सी की डिमांड कितनी है। सी की डिमांड हो सकती है या तो 70 या 100, दैट इज इररिलेवेंट। दोनों ही केस में 50 से ज्यादा है, 40-60 से ज्यादा है, 30-50 से ज्यादा है, सो यू विल स्टार्ट विद सी। अब सी पे जाने के बाद आप नेक्स्ट किस पे जाओगे। अगर ए को लास्ट रखना है और ए का डिमांड का नंबर इज 50, तो बचे हुए दोनों को 50 से ग्रेटर होना पड़ेगा। 50 से ग्रेटर होना पड़ेगा मतलब बी 40 नहीं हो सकता और ये 30 नहीं हो सकता, तो क्लियरली अब 60 और 50 में बड़ा नंबर कौन सा है, 60। तो देन सी के बाद यू विल हैव टू फॉलो द ऑर्डर बी एंड देन डी एंड देन ए। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर दिस स्टैंडर्ड ऑर्डर सीबीडीए। सीबीडीए के लिए सी से स्टार्ट करेंगे, तो डब्ल्यू से सी, वेयरहाउस से सी जा रहे हो तो ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। सी के बाद आपको कहां जाना है, बी। सी से बी का डिस्टेंस तो 4 दिख ही रहा है, 4 से छोटा नंबर अवेलेबल नहीं है, पूरे मैट्रिक्स में है 2, पर 4 इज प्रीटी स्मॉल, तो आपको वेयरहाउस से बी पे जाने की जरूरत नहीं है, तो 12 और 10 22 हो जाता, तो आप सीधे सी से बी पे चले जाओगे। अब बी से डी पे जाना है, बी से डी पे जाने के लिए 10 और 12 ये वाला रूट वेयरहाउस के थ्रू लेना ही पड़ेगा, तो प्लस 12 और कर देते हैं। अब डी से ए पे जाना है, डी से ए पे डायरेक्ट तरीका भी है 8 किलोमीटर का, और डी से वेयरहाउस से होते हुए भी ए पे जाने का तरीका है वो 2 + 5 7 का है। सो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं कि डी से ए पे जाने के लिए सीधे 8 का काउंट कर लें। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस 2 + 5 7 इज गिविंग यू स्मॉलर नंबर। जो लास्ट है डी से ए का डिस्टेंस वो 7 का लेकर मैं स्टार्ट करूंगा। सो 12 और 4 16, 16 एंड 12 28, 28 एंड 7 35 बिकम्स द आंसर। थीटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप अपना आंसर 35 इनपुट करोगे एंड यू विल मूव ऑन। लॉट ऑफ पीपल वुड हैव कमिटेड दिस मिस्टेक of marking their answer as 36 despite solving up to this point which was challenging। इतना सब कुछ करने के बाद भी एंड मोमेंट पे जाके गलती हो सकती है। सो मे बी द फेट फ्रेमवर्क हैज इनडायरेक्टली हेल्प्ड अस। अगर हम पिक नहीं कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि यू नो इमेजिन सब कुछ इतना समझने के बाद, ये ऑर्डर निकालने के बाद बस ये 8 और 7 की गलती हो जाए, इट विल हर्ट अ लॉट, बिकॉज हम यही टाइम किसी और सेट में दे सकते थे जहां गलती होने के चांसेस कम थे। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If the total number of widgets delivered in a day is 250 units, अब उन्होंने टोटल widgets का अमाउंट फिक्स कर दिया 250 यूनिट है, then what is the total distance covered? तो डिस्टेंस कितना कवर होगा ये निकालना है। अब अगर widgets फिक्स है कि 250 डिलीवर कर रहे हैं, तो widgets के लिए काउंट लिख लेते हैं हर एक का कि मिनिमम से मिनिमम कितने और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने widgets डिलीवर हो सकते हैं। बिकॉज ऐसे केसेस सोचे तो 16 केसेस बनेंगे, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 की पावर 4 16 पॉसिबिलिटीज। मैं सिर्फ 2 एक्सट्रीम केसेस निकाल रहा हूं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम 50 और 40, 90 और 70, 160 और 30, 190 मिनिमम है। और मैक्सिमम टोटल निकालें तो 70 और 60, 130 और 100, 230 और 50, 280 हो जाएगा। सो मैक्स नंबर इज 280 एंड दे आर आस्किंग 250 यूनिट्स का ही विडजेट्स डिलीवर करना है। तो कैन आई से 250 बनाने के लिए
30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने मैक्सिमम हाईलाइट करे हैं उनको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। ये 4 हमने हाईलाइट करे हैं, इन 4 वैल्यूज का टोटल 280 होता है जो रेड में हाईलाइटेड है, हमें 30 कम करना है। अब अगर मैं ए का ऑप्शन चेंज करूं कि 70 वाला डिमांड की जगह 50 का डिमांड ले लें तो 20 कम होगा, बी के लिए भी 20 कम होगा, 60 से 40 का स्वैप करा, डी के लिए भी 20 कम होगा, सी के लिए 30 कम होगा, और ये हमें 30 का ही कम करना है। तो अगर एक ही लोकेशन की डिमांड चेंज करनी हो तो सी की कर सकते हैं। क्या दो के कॉम्बो से कर पाएंगे? अगर दो स्मॉलेस्ट भी ले ले तो उनका सम टोटल 40 हो जाता है अगर स्वैप करते। तो द ओनली पॉसिबल वे, दिस इज 100% श्योर दैट द ओनली पॉसिबल वे इज कि सी का आप 100 मत लो, सी का डिमांड कितना ले लो, 70। सो नाउ आई एम सेइंग अलग अलग डिमांड जो हमारे पास एबीसीडी की अवेलेबल है वो क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं जिससे टोटल 250 हो जाए। सो वी नो फॉर श्योर कि सी का 70 है, बचे हुए सबका मैक्स है विच इज ए का 70, बी का मैक्स 60 एंड देन डी का 50 एंड द ऑर्डर देयरफॉर इन विच दे विल गो। अब ए और सी में टाई हो गया, वेयर हाउस से ए का डिस्टेंस 5 का है, वेयर हाउस से सी का डिस्टेंस 12 का है, तो स्टार्ट किससे करेंगे, ए से। सो मैं ऑर्डर लिख देता हूं, फर्स्ट यू विल गो टू ए, देन ए के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट डिमांड सी की है तो आप सी पे जाओगे, फिर डिमांड बी की है बी पे जाओगे, फिर डी की है डी पे जाओगे। इनके बीच में कहीं वेयर हाउस जाना पड़ा तो चले जाएंगे। आई एम जस्ट राइटिंग द डिमांड एट द 4 सिटीज। ए पे जाएंगे तो अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेट्स डू इट। सो ए पे जाएंगे तो 5 का डिस्टेंस, ए के बाद सी पे जाना है तो द ओनली वे इज टू गो बाय वेयर हाउस, तो 5 + 12 ए पे आ चुके हो और अब ये 17 का डिस्टेंस और लोगे तो ए से सी का डिस्टेंस 17 आ गया। इनिशियली वेयर हाउस से ए पे जाने का ये 5 था ना, और ये 17 ए से सी का है। अब सी पे आ चुके हो, सी से आपको किस पे जाना है, बी पे, तो दैट इज 4 किलोमीटर, दैट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अब बी से डी पे जाना है, बी से डी पे जाने के लिए 10 और 2 12 किलोमीटर का डिस्टेंस और, तो ऐड कर ले 17 एंड 5 22 एंड 4 26 एंड 12 38 किलोमीटर इज द आंसर। अगेन a theta based question, you will input your answer is 38 and move on. Let's look at the next question. Question number 3, what is the chance that the total number of widgets, remember सेट की स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था कि इंडिपेंडेंट है डिमांड ऑफ ईच अदर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब हमें बस ये ढूंढ लेना है कि टोटल विडजेट्स 260 डिलीवर हो पाए, टोटल विडजेट्स 260 डिलीवर हो पाए, तो मतलब 280 मैक्स था, पिछले क्वेश्चन में करा है, 20 कम करना है। अब 20 आप ए डी बी तीनों में से किसी में से भी एक सिंगल में से कम कर सकते हो। आगे उन्होंने बोला एट द रूट एंड्स एट बिक्रमपुर, एंडिंग बी पे हो रही है भाई, स्टार्ट किससे करोगे। अब अगर आप ए बी डी में से किसी को लेस करोगे 20, मतलब जो ऑर्डर है वो क्लियरली ये हो गया कि सी की 100 की डिमांड लो गया, तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद सी विद द डिमांड ऑफ 100 एंड दे आर सेइंग दैट यू हैव टू एंड एट बिक्रमपुर बी, बी पे एंड करना है। तो चेक करके देखो क्या मैं बी पे 60 डिमांड ले सकता हूं, अगर 60 ले लिया तो 30 और 50 डी से बड़ा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। टू एंड एट बिक्रमपुर द डिमांड हैज टू बी 40, तो बी के लिए करस्पॉन्डिंग डिमांड हो गई 40, सी के लिए 100 फिक्स हो गई। क्यों सी पे 100 फिक्स हो गई, क्योंकि आप बचे हुए तीनों का मैक्सिमम ले रहे हो, सिर्फ बी को लास्ट कर रहे हो तो उसका 20 रिड्यूस हो गया है, तो मतलब बचे हुए डी और ए की मैक्सिमम डिमांड, ए का 70 है तो नेक्स्ट इन ऑर्डर हैज टू बी ए, दिस इज 70 एंड डी हैज टू बी 50, तो दिस इज द ऑर्डर 100 70 50 40, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिमांड में आप विजिट करवाओगे। ये कहानी क्लियर हो गई। अब इनके लिए करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। सी की डिमांड 100 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 70%, ए की डिमांड 70 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 60%, डी की डिमांड 50 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 60%, और बी की डिमांड 40 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 30%। रिमेंबर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो यू विल मल्टीप्लाई द पॉसिबिलिटीज। तो मैं सीधे इनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, सिंपल 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 6 या 7 6 42, 42 इंटू 18, 42 इंटू 18 कितना होगा, 42 10 420, या 42 इंटू 20 कर लो, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 16 का 6 कैरी का 1, 8 4 32 और 2 34 और 1 35 का 5 कैरी का 3, 4 1 3 और 4 1 4 और 3 7, तो 756 आ रहा है। परसेंटेज में निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 7.56%। चॉइस सी बिकम्स आंसर। तो कुछ नहीं करना है, इन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है। ये प्रोबेबिलिटी चारों क्यों मल्टीप्लाई करें, बिकॉज सी पे डिमांड 100 होने का चांस 70% है और सी पे 100 ही डिमांड लेके चलना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या चांस है
कि सी पे 100 डिमांड हो, ए पे 70 हो, डी पे 50 हो, डी पे 40 हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन वो हमसे चाह रहा है. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट लुक्स सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, कि वो बोल रहा है फर्स्ट लोकेशन अहमदनगर है, तो स्टार्ट ऐसे करोगे. बट पिछले क्वेश्चन को देखो तो उसने बोला था व्हाट इज द चांस. चारों सिनेरियोस पॉसिबल थे, जिस ऑर्डर में आप दे रहे हो वो पॉसिबल था, डिमांड की अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल थी. अब उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी, यहां उसने कंडीशन दे दी है कि फर्स्ट लोकेशन तो फिक्स है अहमदनगर. फर्स्ट लोकेशन फिक्स है अहमदनगर, इसका एक ही मतलब निकल सकता है. वो मतलब क्या कि इसकी डिमांड हैज टू बी 70, क्योंकि सी की तो मिनिमम 70 है. आप फर्स्ट कैसे जा सकते हो ए पे जब 70 हो. मतलब ये गिवन है. डोंट टेक दिस 60% का प्रोबेबिलिटी इनटू अकाउंट, ये लेके मत चलना. बहुत लोग गलती करेंगे कि सर ये 70 होने की प्रोबेबिलिटी भी तो 60% है. यस, इफ एवरीथिंग एल्स वाज स्टेटस को. नाउ दे आर सेइंग पहला लोकेशन तो अहमदनगर जा ही रहे हैं भाई, फिक्स कर दिया दैट यू आर स्टार्टिंग विथ अहमदनगर फॉर श्योर. ए से स्टार्ट कर रहे हो तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है ऐसा मान लो. दिस इज गिवन. अगर ए से स्टार्ट कर रहे हो और बिकॉज सी की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो देयर इज अगेन नो चांस कि आप कहीं और जाओगे. आप डेफिनेटली किस पे जाओगे, सी पे जाओगे. तो ए से सी पे जाने वाला पार्ट तो फिक्स है. दिस इज गिवन. नाउ एसी वाला पार्ट इज गिवन. नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द चांस दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 40. ए से सी का काउंट कर ले. ओरिजिनली ए पे आने के लिए वेयर हाउस से 5 किलोमीटर, और फिर ए से सी के लिए 17 किलोमीटर, और 17 और 5 22 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर चुके हो. अब आपको टोटल 40 कवर करना है, मतलब 18 किलोमीटर और कवर करना है. अब क्या ऑर्डर फॉलो करोगे. 18 किलोमीटर कवर करने के लिए आप ए सी के बाद बी डी पे जाओगे, ए सी बी डी वाला ऑर्डर फॉलो करोगे. अगर वैसा ऑर्डर फॉलो करते हो तो चेक करो क्या होगा. ए से सी पे गए, फिर आप 4 और 10 14 और 2 16 38 किलोमीटर कवर होगा. अगर आप पहले डी पे चले जाओ, तो अगर आप पहले डी पे जाते हो तो 6 और 12 18, तो 40 किलोमीटर हो जाएगा. मतलब द नेक्स्ट ऑर्डर दैट यू विल टेक अप इज सी डी बी. तो 22 में सी से डी पे जाने के लिए आपने 6 किलोमीटर और कवर करा, और डी से बी जाने के लिए 2 और 10 12 किलोमीटर और कवर करा. 22 और 18 40 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कवर हो गया है. विच मीन्स 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू स्टार्ट विथ ए. ए तो फिक्स कर ही दिया है, ए फिक्स होने से सी भी फिक्स हो गया है. सो द ओनली प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू इज फॉर डी एंड बी. अब आप सी से डी पे जाओगे पहले बिफोर यू गो टू बी, तो कैन आई से डी की डिमांड हैज टू बी हायर देन बी. दिस कैन ओनली बी पॉसिबल जब ये 60 ना हो, बिकॉज अगर ये 60 हो गया तो 30 50 दोनों से बड़ा हो जाएगा. मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. देयरफॉर आई विल से कि ये अगर 40 है तो 40 से बड़ा डी के लिए करस्पॉन्डिंग नंबर 50 होना पड़ेगा. तो डी के लिए जो डिमांड है वो 50 है, बी के लिए जो डिमांड है वो 40 है, और 50 डिमांड की प्रोबेबिलिटी क्या है 60%. 40 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%. सो 60% 30%, बस आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी चॉइस डी 80%. अ सुपर सुपर चैलेंजिंग क्वेश्चन, बिकॉज बिलीव मी everybody who's decently prepared would mark the answer as 3.24%. I'll be extremely honest with you here. मैंने जब ये सेट सॉल्व करा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, आंसर 3.24% मार्क कर दिया, एंड आई कुड नॉट बिलीव कि 3.24% आंसर नहीं है. मतलब ऐसा होता है ना कि हम श्योर होते हैं किसी गलत चीज के ऊपर, अरे 100% श्योर है सर 3.24% ही आना है, बट आंसर इज 18%. एंड बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक्सटेंड कर दें तो सॉल्व करने के लिए वी यूज बेस थ्योरम, बट उतना डेप्थ में ना जाते हुए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टर्म यूज ना करते हुए, सिंपल तरीके से अगर सोचें तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ए पे जाना गिवन था, वो तो 100% प्रोबेबिलिटी दे दी, दैट वाज डिफाइंड. सो यू डोंट हैव अ चॉइस नाउ टू डिसाइड कि ए पे डिमांड 70 होने के लिए 60% चांस है. 60% चांस नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि ए की डिमांड तो 70 है ही, दैट इज 100% गारंटी. एंड बिकॉज ए 70 है और सी का बी और डी से तो ग्रेटर है, देयर इज नो चॉइस लेफ्ट फॉर अस टू से कि सी पे जाना है या नहीं जाना है. सी पे तो जाना ही है इसके बाद. तो अब ए और सी पे जाने के बाद जो बच गया पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, वो सिर्फ किसका बचा है, डी और बी का. तो डी के लिए डिमांड का चॉइस 50 और बी के लिए डिमांड का चॉइस 40, इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल मार्क आवर आंसर इज 18%. सो डेफिनेटली
said that you should probably leave in the exam, क्योंकि अगर सब कुछ समझ भी लिया, कॉन्फिडेंटली आंसर भी मार्क कर दिए, तो भी आपके आंसर गलत होंगे बिकॉज ऑफ दिस वन कंडीशन विच इज डेफिनेटली गिवन. तो इफ से स्टार्ट होके बोल रहा है कि ये तो गिवन ही है, तो फिर ये गलती हो सकती है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अहमदनगर इज नॉट द फर्स्ट लोकेशन टू बी विजिटेड इन अ रूट, अहमदनगर फर्स्ट लोकेशन नहीं है. अहमदनगर फर्स्ट लोकेशन कब नहीं हो सकती? जब ये 70 होता तो डेफिनेटली फर्स्ट होती है ना. सो अहमदनगर इज नॉट द फर्स्ट लोकेशन इन द रूट. अहमदनगर फर्स्ट लोकेशन नहीं है, तो अभी अहमदनगर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते शायद हम, या बोल सकते हैं 50. विल कम बैक टू दैट. बट अभी के लिए ये पक्का हो गया दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सी, बिकॉज फर्स्ट लोकेशन ये नहीं है. आप सी से स्टार्ट करोगे. अच्छा, ये बोल सकते हैं क्या कि 70 या 50 ए पे कुछ भी हो सकता है, सी पे 70 या 100 कुछ भी हो सकता है. अच्छा, टोटल रूट डिस्टेंस इज 29. टोटल रूट का डिस्टेंस भी 29 है. अगर आप फर्स्ट ए नहीं है तो ये तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि यू विल हैव टू स्टार्ट विथ सी. तो आप वेयर हाउस से सबसे पहले सी पे जाओगे, और वेयर हाउस पे जैसे ही आप सी पे जाते हो, आपका 12 किलोमीटर आउट ऑफ 29 किलोमीटर में से 12 तो पहले ही फिक्स हो गया, तो आप सी पे जा रहे हो. सी के लिए अभी हमें डिमांड नहीं पता, 70 या 100 कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो एनीथिंग. बट अब सी के बाद हमें 29 किलोमीटर कवर करवाना है, मतलब 17 किलोमीटर कवर करवाना है. अब 17 किलोमीटर कैसे कवर हो सकता है? तो सी से आप बी पे चले जाओ 4 किलोमीटर, फिर बी से आप डी पे चले जाओ तो 12 किलोमीटर. तो 12 और 4 16, तो यही हो गया, 16 और 12 28 हो गया. तो फिर आप 29 नहीं कर पाओगे. तो सी से आप डी पे चले जाओ. सपोज डी पे आप गए 6 और फिर 12 18, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो कहना है सी से आपको बी पे जाना पड़ेगा 4 के बाद यू गो टू this 6 4 and 6 10 and 2 7. So this is a possible order that you can have. C से first go to D. So you go to D. C से D. So C से D जब जाते हो तो 6 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर कर लिया. मैं ओरिजिनल डिस्टेंस 12 का लिख ही रहा हूं कि वेयर हाउस से C गए, उसका 12 किलोमीटर, दिस वाज WC का डिस्टेंस. फिर C से D जो जर्नी कवर करी उसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर. फिर C से D जाने के बाद अगर आप 2 और 10, सी से डी जाने के बाद 12 और 6 नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. दिस इज नॉट वर्किंग आउट. अगर आप डब्ल्यू से सी पे जा चुके हो, उसके बाद 29 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं. सो सी से बी पे चले जाओ. अगर सी से बी पे गए तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस. 4 के बाद बी से ए पे चले जाओ. सो बी ए का जो डिस्टेंस है 4 के बाद दैट इज 6. तो अभी हमारा 22 का डिस्टेंस हो गया. ए से वेयर हाउस होते हुए आप डी पे चले जाओ तो 5 और 2 7. सो ए से डी वाला डिस्टेंस AWD करके लिख देता हूं जिससे क्लियर हो जाए कि वेयर हाउस होते हुए जा रहे हो. AWD तो 7 किलोमीटर का और. तो 12 और 4 16 और 6 22 और 7 29 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कवर हो रहा है. देयरफॉर द ऑर्डर दैट यू विल हैव इज सी से डी पे नहीं जाओगे, आप किस पे जाओगे? सी से यू विल गो टू बी फर्स्ट. सी से बी जाओगे, बी से ए जाओगे और फिर ए से डी जाओगे. अब इनके लिए जो करस्पॉन्डिंग डिमांड्स हो सकती है वो देख लेते हैं. सी से नेक्स्ट स्टॉप बी है. क्या बी का डिमांड 40 हो सकता है? अगर 40 हो गया तो 30 50 दोनों पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते, फिर 30 लेना पड़ेगा. ठीक है. ए का 50 70 में से नंबर हमें पता है कि ए इज आफ्टर बी. ए इज आफ्टर बी मतलब ए कैन नॉट बी 70, क्योंकि बी का 40 60 का डिमांड है, इससे ग्रेटर 70 नहीं हो सकता. तो ए के लिए दिस नंबर इज 50 फॉर श्योर. एंड इफ 50 से ग्रेटर बी को होना है बिकॉज आप पहले बी पे रीच कर रहे हो, तो देन द नंबर हियर हैज टू बी 60. तो बी और ए की डिमांड तो फिक्स हो गई. डी के लिए कुछ भी हो सकता है. 50 के बाद 30/50 बोथ द नंबर्स आर पॉसिबल. So we don't know the demand for C, we don't know the demand for D, we only know the demand for B and A, which is why probably they are asking which of the following is a possible number of widgets delivered on that day. Possible number क्या हो सकता है? तो possible number के लिए 4 केसेस बन सकते हैं कि आप C 70 लो या 100 लो, D 30 लो या 50 लो. B और A का टोटल तो फिक्स है, तो मैंने लिख दिया B और A का टोटल इज 110. डी और सी का जो टोटल है, सीडी के 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो वो 4 कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं. 70 और 30
100 हो सकता है, मिनिमम ले लिए। 70 के साथ 50 ले लिया, 120 हो सकता है। 100 के साथ 30 ले लिया, 130 हो सकता है। और 100 के साथ 50 ले लिया, 150 हो सकता है। तो आपके 4 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं फॉर टोटल widgets that are delivered. So अगर 4 आंसर देखें तो 100 और 10, 210 which is an option A. So that becomes our answer. पर बचे हुए 3 पॉसिबल नहीं आएंगे, तो बचे हुए 3 यहां से टोटल करके देख लो क्या क्या आ सकते थे। 110 और 120, तो वी वुड हैव गॉट 230, 230 के बाद नेक्स्ट 240 और ये 260, 230, 240, 260, 230, 240, 260, तीनों ही ऑप्शंस बनेंगे। The only possible option is 210, and the route that will follow is warehouse to C, then B, then A to warehouse, and then D to have a total distance of 29 kilometer. So this completes our 5th question as well. A super challenging set. एग्जाम में ये पिक करने लायक नहीं था. This is a good set for practice to understand possibilities, variations, sum total, understanding some silly mistakes that might happen if we don't use the warehouse location. तो इस तरह की लर्निंग के लिए अच्छा सेट है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा सेट है. और ऐसे सेट्स की प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में अगर ऐसा सेट आएगा तो प्लीज डू नॉट पिक सच अ सेट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे और लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई टेक अ लीव.